السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ مکہ معظمہ کی فضا ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر کلمات تلبیہ تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور امراء کے سر جھکے جا رہے تھے۔ ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ ہر فرد بلا امتیاز رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے۔ یہ بیکاری تھے، ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے۔ یہ بیکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ان بیکاریوں میں سے ایک بیکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بیکاریوں جیسا ہی ایک بیکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھا۔ اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیف تھا، اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس کی وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اسے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا، اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوتے، اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں سنسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بڈھے بدو، قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا، وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک اور حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید ابن الملک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا نام بھی ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا، اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا۔ صرف اللہ کا نام رہے گا، کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوئے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا، اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔ وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دے جاتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا، پھر دن بھر کی بھیک گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا، وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بھکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی سزا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بھکاری نے مڑ کے دیکھا۔ بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا۔ کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بھکاری نے کہا۔ میں نے بھاگنا ہوتا تو ابھی اندلس تیرے دماغ سے نکلا نہیں؟ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، بوڑھے بھکاری نے کہا۔ محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا، اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روز قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بھکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے تو اس نے سزا لگائی۔ یہ کوئی عقل والا بھکاری معلوم ہوتا ہے، ایک افریقی نے کہا۔
हाँ, दूसरे ने कहा। दूसरे भिखारियों की तरह अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोता। दोनों अपनी थैलियों से पैसे निकालने लगे। भिखारी जमीन पर बैठा मुंह ऊपर करके उन्हें देख रहा था। एक अफ्रीकी उसे पैसे देने लगा तो उसका हाथ रुक गया। वो भिखारी के सामने बैठ गया और उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा जरा ऊपर उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? अफ्रीकी ने भिखारी से पूछा। मेरा कोई नाम नहीं, भिखारी ने कहा। मैं अल्लाह के इस फरमान की मुजस्सम तफसीर हूँ कि वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। खुदा की कसम, अफ्रीकी ने कहा। तुम मूसा हो? मूसा बिन नसीर, अमीर अफ्रीका, फातह उंदलस? दूसरे अफ्रीकी ने हैरत ज़दगी के आलम में पूछा। बूढ़े पाबजोला भिखारी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये किस जुर्म की सजा मिली तुम्हें? एक अफ्रीकी ने पूछा। बूढ़े भिखारी ने उंगली आसमान की तरफ कर दी। बोला, कुछ भी नहीं। उस पर रक्कत और जज्बाती कैफियत तारी थी। हमने सुना है कि तुम खलीफा के जेर अताब हो। दूसरे अफ्रीकी ने कहा। ये तो हमारे लिए बैदस कयास था कि तुम भिखारी बन चुके हो। भिखारी बना दिया गया हूँ, मूसा बिन नसीर ने कहा और अपनी टांगों और पांव से कपड़ा हटाकर बोला। मैं खलीफा का कैदी हूँ और दमिश्क के उसी कैद खाने में बंद रहा हूँ जहाँ खलीफा ने फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ के दुश्मनों के हाथों अजियतें दे देकर कत्ल करा दिया था। खलीफा सलमान फरीजा हज अदा करने के लिए आया है और मुझे इस हुक्म के साथ यहाँ लाया है कि मैं भीख मांगूं और उसे 2 लाख दिरहम अदा करूं, वरना मैं पाँव में बेड़ियां डाले इसी तरह भीख मांगता रहूंगा। 2 लाख दिरहम? एक अफ्रीकी ने हैरत से कहा। क्या ये उंदलस को फतह करने का जुर्माना है? इस सवाल का जवाब खासा तवील था। मूसा में शायद इतना ज्यादा बोलने की सकत नहीं थी या वो जवाब देना नहीं चाहता था। उसने इस सवाल के जवाब में सवाल करने वाले अफ्रीकी की तरफ देखा और उसका सर आगे को यूं लग गया जैसे उसे ऊँग आ गई हो। उसकी उम्र 80 बरस होने को थी। उम्र के कमोबेश 60 बरस मैदान जंग में लड़ते कूच करते और खैमों में रहते गुजरे थे। वो कई मारकों में जख्मी हुआ था। उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा न था जिस पर जख्म का निशान ना हो। उसका जख्म खुर्दा वजूद चलती फिरती तारीख था, इस्लाम की अस्करी तारीख। वो आलिम और फाजिल भी था। अक्ल दानिश में उसका मकाम बहुत बुलंद था। ये जो 2 अफ्रीकी उसके पास रुक गए थे, दोनों शिमाली अफ्रीका के रहने वाले बर्बर थे और दोनों अपने अपने कबीले के सरदार थे। बर्बर शिमाली अफ्रीका में रहने वाली एक वहशी और खूंखार किस्म की कौम थी। आज जुल्म तशद्दुद के इंतहा के लिए बर्बरियत का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो इसी कौम बर्बर से मंसूब है। बर्बर जंगो जदल और कत्ल गारतगरी और लूटमार के लिए मशहूर थे, लेकिन फन्ने हर्ब व ज़र्ब से पूरी तरह वाकिफ न थे। उनकी बहादुरी और खूनरेजी उनके ताकतवर दुश्मनों को भी खौफजदा कर दिया करती थी। ये कई बार मफ्तू हुए, लेकिन कोई भी फातेह उन पर ज्यादा अरसा हुकूमत न कर सका। आखिर अरब के मुसलमानों ने उस तरफ रुख किया। मुजाहिदीन के लश्कर के सिपह सालार उक़बा बिन नाफे फहरी थे, जिन्होंने बड़ी ही खूनरेज लड़ाइयों के बाद बर्बरों पर फतह पाई। बर्बर कुछ अरसा बगावतें करते रहे, लेकिन अरब सिपह सालारों ने उन बगावतों को जंगी ताकत से दबाने की बजाय इस्लाम के उसूलों के जरिए ठंडा किया। बर्बरों का अपना एक मजहब था, लेकिन उनके कल्चर की कोई बुनियाद नहीं थी। मुसलमान फातिहीन ने जब इस्लाम पेश किया तो बर्बर बड़ी तेजी से इस्लाम कबूल करने लगे। उन्हें फौज और इंतजामिया में अच्छे ओहदों पर लिया जाने लगा। इनसे बाकायदा लड़ाइयाँ लड़ाई गईं और इस तरह इस कौम में डिसिप्लिन पैदा हो गया और बर्बर इस्लाम की एक जंगी ताकत बन गए। अब मूसा बिन नुसैर अफ्रीका का अमीर था। उसने अपनी हिकमत अमली से बर्बरों में बगावत की आखिरी चिंगारी को भी सर्द कर दिया। वो मूसा जो मैदान जंग में कुफार के लिए सरापा कहर हुआ करता था, बागी बर्बरों के लिए रेशम से नर्म और शहद से मीठा था। उसकी इस हिकमत अमली ने बर्बरों को, खुसूसन बर्बर सरदारों को, इस्लाम का शैदाई और मर्दान हुर बना दिया था। ये बर्बर सरदार जो मक्का मुअज़्ज़मा में उसके सामने आ बैठे थे, मूसा के परवरदा और तरबियत याफ्ता थे। इनमें से एक यूसुफ इब्न अल हारिस था और दूसरा खिज़्र इब्न अल गयास। कबूल इस्लाम के बाद उन्हें ये नाम अरबों ने दिए थे। वो दोनों मूसा को भिखारियों के रूप में देखकर उसी एहतराम का मुजाहिरा कर रहे थे जो उनके दिलों में उस वक्त हुआ करता था जब मूसा अफ्रीका की मस्जिद इमारत पर बैठा होता था। हमें बता अमीर अफ्रीका, यूसुफ इब्न अल हारिस ने पूछा, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, मूसा ने कहा। अल्लाह ने मुझे किसी गुनाह की सजा दी है। कुछ तो बता इब्न नसीर। खिज़्र इब्न अल गयास ने कहा, हम इसके खिलाफ बगावत कर देंगे। हम सुलेमान अब्दुल मुल्क को कत्ल कर सकते हैं। यूसुफ इब्न अल हारिस ने मूसा के कान में कहा, वो फरीज़ा हज के लिए आया है, उसकी लाश वापस दमिश्क जाएगी। फिर क्या होगा? मूसा ने पूछा। नया खलीफा तुम्हारी सजा माफ कर देगा। यूसुफ ने कहा, हम जान गए हैं कि तुम सुलेमान अब्दुल मुल्क के जाती अनाद और हसद का शिकार हुए हो। मैं उसे कत्ल कराऊंगा तो भी मैं अल्लाह के हुजूर जाती अनाद का मुजरिम हूँगा। मूसा ने कहा, मैं खुद उसकी खिलाफत के खिलाफ बगावत करा सकता था, लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे अपनी जान नहीं, इस्लाम की अजमत ज्यादा अजीज है। मैंने और मुझसे पहले अफ्रीका के उमरा ने तुम्हारी कौम में बगावतों को क्यों खत्म किया था? तुम्हारे अपने गुलाम बनाने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए और कुफ्र के खिलाफ इस्लाम को एक ताकत बनाने के लिए। मैं कितने दिन और जीऊंगा? चांद एक और चांद तुलू होते देख लूंगा। सुलेमान कब तक जिंदा रहेगा? उससे भी मरना है। जिंदा इस्लाम रहेगा। एक बार खिलाफत के खिलाफ बगावत हो गई तो ये आग हर उस मुल्क में पहुंच जाएगी जहाँ मुसलमान हुक्मरान है। मैंने अपने आप को नहीं, इस्लाम को बचाना है। उस वक्त जब ये बर्बर यूसुफ इब्न अल हारिस और खिज़्र इब्न अल गयास मूसा बिन नसीर के साथ खलीफा सलमान बिन अब्दुल मुल्क के कत्ल और खिलाफत के खिलाफ बगावत की बातें कर रहे थे, एक हाजी उनके पास आन खड़ा हुआ और उनकी बातें सुन रहा था। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा।
क्या तुम इस ज़ईफ़ उल उम्र भिखारी का तमाशा देख रहे हो? यूसुफ ने उसे कहा, इसे कुछ देना है तो अल्लाह के नाम पर दो और जाओ। इसकी और तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मेरे अफ्रीकी भाई। उस आदमी ने कहा, मेरा दिल इसके गम में बोझल हो रहा है। खुदा की कसम, ये बुजुर्ग मुझे इजाजत दे तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर खलीफा को कत्ल कर दूं। इस अजीम इंसान को जो कोई भी पहचानेगा वो यही कहेगा कि तुम जो कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? खैदर ने उससे पूछा। लबो लहजे से शामी लगते हो। हाँ, उसने कहा, तुमने ठीक पहचाना है मेरे भाई, मैं शामी हूँ। उसने थैली खोलकर उसमें से 2 दीनार निकाले जो मूसा की गोद में फेंक कर बोला, मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। लिया इब्ने नसीर। खजर ने मूसा से कहा, जो कोई तुम्हें जानता है वो तुम्हारी निजात के लिए अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी जान के लिए किसी की जान खतरे में नहीं डालूंगा। मूसा ने कहा, मैं निजात की भीख सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ। तुम्हारा 2 लाख जुर्माना हम अदा करेंगे। यूसुफ ने कहा, लेकिन वापस जाकर, यहाँ तो हम ज्यादा राह ही लाए हैं। मेरा कबीला तुम्हारे नाम पर दिरहम और दीनार के अंबार लगा देगा। खजर ने कहा। ये दोनों भर मूसा के सामने से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी अकीदत कि वो तो जैसे उसे उठाकर अपने साथ ले जाना चाहते थे। तुम दोनों चले जाओ, मूसा ने उन्हें कहा। मैं खलीफा का कैदी हूँ, वो मुझे यहाँ बिठाकर भूल नहीं गया। वो अपने मुहाफिजों के जरिए मुझ पर नजर रखता है, जानता है कि जिन लोगों का मैं अमीर रहा हूँ वो मेरी कदर कीमत को भूले नहीं होंगे। मुझे इस जिल्लत और रसवाई में देखकर कोई भी इंतहाई कार्रवाई कर सकता है। वो दोनों वहां से उठने ही वाले थे कि 4 आदमी हाथों में नंगी तलवारें लिए आए और दोनों बर्बरों के इर्द गिर्द खड़े हो गए। तुम दोनों को खलीफा ने तलब किया है। उनमें से एक ने यूसुफ और खजर से कहा, खलीफा को हमारे साथ क्या काम हो सकता है? यूसुफ ने पूछा। इसका जवाब सिर्फ खलीफा दे सकता है। उस आदमी ने कहा, हम हुक्म के पाबंद हैं, फौरन चलो। अगर हम ना चलें तो? खजर बोला, फिर तुम्हें यहाँ से घसीट कर ले जाया जाएगा। उस आदमी ने कहा, यह भी खलीफा का हुक्म है। इससे पहले कि तुम्हें घोड़ों के पीछे बांध कर ले जाया जाए, चल पड़ो। खलीफा के हुक्म को तुम नहीं टाल सकते मेरे दोस्तों, मूसा ने कहा। इनके साथ चले जाओ, रुसवाई से बचो, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज हो। वो 4 आदमी दोनों बर्बरों को अपने साथ ले गए। मूसा बिन नुसैर की आंखों में आंसू आ गए। हाजियों के खेमों से अलग थलग खेमों की एक और बस्ती आबाद हो गई थी। इन खेमों के दरमियान एक खेमा बहुत बड़ा था। ये नाम को तो खेमा ही था, लेकिन ये रंगदार कनातों और झालरों वाले शामियाने का एक खूबसूरत कमरा था। इसके अंदर रेशमी पर्दे लगे हुए थे, एक बड़ा पलंग और इस पर रेशमी जाली की मसहरी थी। नीचे कीमती कालीन बिछा हुआ एक पलंग और उससे जरा हटकर छोटे सोफे की शक्ल की एक कुर्सी रखी थी। उसके आगे एक खुशनुमा चौकी और चौकी पर मखमल के गिलाफ वाली गद्दी रखी थी। कुर्सी पर बैठने वाला आदमी उस गद्दी पर पांव रखा था। इस नर्मोगदाज कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जिसका लिबास अरबों जैसा था और लिबास भी ऐसा कि दूर से देखने वाला भी कह उठता था कि ये किसी मुल्क का बादशाह है। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ और झुककर फिर दायां बाजू घुमाकर और हाथ माथ पर रखकर ताजीम बजा लाया। खलीफतुल मुस्लिमीन, उसने कहा, दोनों को ले आए हैं। इनके पास हथियार है? खलीफतुल मुस्लिमीन ने पूछा। नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन, उस आदमी ने कहा, वो एहराम बांधे हुए हैं, निहत्ते हैं, उनकी तलाशी ले ली है। खलीफतुल मुस्लिमीन सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने शहंशाहों के अंदाज से अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। उसके सामने खड़ा आदमी उल्टे पांव बाहर निकल गया। बर्बर यूसुफ इब्न अल हारिस और खजर इब्न गयास अंदर आ गए। सलाम अलैकुम अमीरुल मोमिनीन, दोनों ने बैक ज़बान कहा। बर्बरों के मुतालिक मैंने जो सुना था वो गलत नहीं सुना। खलीफा ने कहा। क्या सुना है खलीफा ने बर्बरों के मुतालिक? खजर ने पूछा। वो तहजीब से बेबहरा हैं। खलीफा सुलेमान ने कहा। वहशी हैं, तुमसे हमारे बद्दू अच्छे हैं जो आदाब व अखलाक से बेगाना नहीं। यूसुफ और खजर के चेहरों पर हैरत के आसार नमूदार होने लगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। मेरी तरफ देखो, खलीफा ने शाहाना रोब से कहा। एक दूसरे को क्या देखते हो? तुम बेकसूर हो, तुम्हें दरबार खिलाफत के आदाब सिखाए नहीं गए। क्या तुम्हें बताया नहीं गया कि खलीफा के आगे झुककर सलाम किया जाता है? अमीरुल मोमिनीन, यूसुफ ने कहा। हम सिर्फ उस दरबार में झुकना जानते हैं जिसमें हाजिरी देने इतनी दूर से आए हैं। अल्लाह के इस दरबार में हम सिर्फ झुकते ही नहीं, सजदे भी करते हैं। हमें ये आदाब इस्लाम ने सिखाए। इस वक्त तुम खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार में हो। खलीफा सुलेमान ने ताब आमेज लहजे में कहा। यहाँ भी झुकना लाजमी है। खलीफतुल मुस्लिमीन, यूसुफ ने कहा, हमने इस्लाम इसलिए कबूल किया था कि इसके उसूल हमें अच्छे लगे थे। एक ये कि इंसान इंसान के आगे नहीं झुका करता। इस्लाम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का हुक्म देता है। इस्लाम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकने का हुक्म देता है। अगर आप हमें अपने आगे झुकने का हुक्म देते हैं तो हम इस्लाम को तर्क करके वापस अपने मजहब में चले जाते हैं। मैं इस्लाम का ही खलीफा हूँ। सुलेमान ने कहा। मुझे बत बताओ कि इस्लाम के अहकाम क्या है। मैं जंगलों में रहने वाले और तहजीब व अखलाक से नाबलद बाबरों को इजाजत नहीं दे सकता कि वो मुझे इस्लाम के अहकाम सुनाए। बर्बरों की तहजीब और उनका अखलाक देखना है तो उंदलस में जाकर देख खलीफा। खजर भड़क कर बोला, क्या तू नहीं जानता कि उंदलस की फतह का सेहरा बर्बरों के सर पर है? तारिक बिन ज़याद भी बर्बर है। यूसुफ ने कहा। जिन बर्बरों को तू वहशी और जंगली कह रहा है उन्होंने उंदलस के कुफार के दिल जीतकर उन्हें हल्का बगोश इस्लाम कर लिया है। खलीफतुल मुस्लिमीन, खजर ने कहा, तूने उंदलस के फातिहीन को वापस बुला लिया है तो बर्बर अरब के सालारों की कमान में अभी भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तारिक बिन ज़याद ने उंदलस के साहिल पर फौज उतारकर कश्तियां जला डाली थी कि वापसी मुमकिन ही न रहे, मगर उसने आधा उंदलस फतह कर लिया तो उसे दमिश्क बुलाकर उसके बालों पर जला दिए गए कि वो गुमनामी में खो जाए और दूसरे फाते अमीर अफ्रीका मूसा बिन नुसैर को बेड़ियां डालकर भिखारी बना दिया। उंदलस में जाके देख,
वो बर्बर हैं जिन्होंने उंदुलुस के सीने में इस्लाम का परचम गाड़ दिया है। और सुना है तुम दोनों मूसा की जिल्लत और रसवाई का मुझसे इंतकाम लोगे। खलीफा ने कहा, क्या तुम में इतनी जरूरत है कि तुम मुझे कत्ल करो? तुम बगावत करके मेरी खिलाफत का तख्ता उलटना चाहते हो? अगर मूसा बिन नुसैर इशारा कर दे तो हम बगावत भी करके दिखा देंगे। यूसुफ ने कहा, अगर तेरे मुखबिरों ने हमारी वो बातें जो हमने मूसा के साथ की हैं तेरे कानों में डाल दी हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। तारीफ कर मूसा की जिसने हमें रोका है। खिज़र ने कहा, क्या उसकी बातें तेरे कानों तक नहीं पहुंची? वो कहता है कि बगावत का नाम न लेना वरना सल्तनत इस्लामिया कमजोर हो जाएगी, मगर तू इस्लाम की जड़ें काट रहा है। ले जाओ इन बदजबान जंगलियों को, खलीफा ने गरज कर कहा। इन्हें दमिश्क के कैद खाने में पहुंचा दो, यही इनका आखिरी ठिकाना होगा। खलीफा के 6-7 महाफिज दौड़ के अंदर आए। उनकी तलवारों की नोकें उन दोनों बर्बर सरदारों के जिस्मों में चुभने लगी। महाफिज उन्हें घसीटते धकेलते हुए खेमे से बाहर ले गए। हमें फरीज़ा हज से रोकने वाले यूसुफ और खिज़र की आवाजें खलीफा सुलेमान को सुनाई दे रही थीं। तेरी बादशाही के दिन थोड़े रह गए हैं। उनकी आवाजें दबती गईं और हाजियों की आवाज की मुतरन्नम गूंज अल्लाहुम्मा लब्बैक में डूब गई। इसके बाद उन दोनों बर्बरों का कहीं सुराग न मिला। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क वलीद बिन अब्दुल मुल्क का भाई था। सुलेमान से पहले खलीफा वलीद था। वो अपने बेटे को अपना जानशीन बनाना चाहता था, लेकिन अचानक उसे ऐसे मरज ने आन लिया कि चंद दिनों में इंतकाल कर गया। अपने बेटे को वह खिलाफत के लिए नामजद भी न कर सका। उसके इंतकाल के साथ सुलेमान ने मसनद खिलाफत संभाल ली। दोनों भाइयों में ये फर्क था कि वलीद ने मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान पर फौजकुशी के लिए भेजा था और उसे कुमक और हर तरह की मदद भेजता रहा। दूसरी तरफ उसने अमीर शुमाली अफ्रीका मूसा बिन नुसैर के इस मंसूबे को मंजूर किया, उंदुलुस पर हमला किया जाए और इसकी क़यादत एक बर्बर सिपहसालार तारिक बिन ज़ियाद करे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।